امام زمانہ کے استقبال کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیے۔ آقا جی سرکار کی صحت و سلامتی اور مجلس کی مقبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھیے۔ مومنین و مومنات کی صحت یابی اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ پھر مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم۔ سبحان من لبس البہجۃ والجمال، سبحان من ترد بالنور والوقار، سبحان من یرا اثر النمل فی الصفاء، وسبحان من یرا وقع الطیر فی الہواء، سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ، سبحان من نور قلبی وقلوب المؤمنین بولایت علی ابن ابی طالب والمودت اولادہم المعصومین۔ رب نور العظیم ورب الکرسی الرفیع، رب البحر المسجور والمنزل التوراۃ والانجیل والزبور، رب الظل والحرور والمنزل القرآن العظیم، رب الملائکۃ المکرمین والانبیاء والمرسلین، رب الجنۃ والناس، رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین والکافرین والمنافقین والغالین والمقصرین، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الدوحۃ الہاشمیہ والدعوۃ النبویہ صولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والحجاب الزینبیہ والوفاء العباسیہ والصبر السجادیہ والعلوم الباقریہ والصداقۃ الجعفریہ والامانۃ الکاظمیہ والوصایۃ الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الحجۃ الہیہ۔ صلوات پڑھیں روحی و ارواح العالمین لترا بمقدمہ الفداء، والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ورحم اللہ علی اصحابہ المنتجبین وشیعتہم ومحبہم اجمعین، ولعنۃ الدائمۃ الواقعۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم وغاصب حقوقہم وقاتلہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، آمین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلام المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزاداران جناب سیدہ ام المومنین، میں اپنی طرف سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس دلسوز تاریخ کی تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ کی یوم شہادت دلسوز کے عنوان سے تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ آج عالم اسلام کی یتیمی کی رات ہے،
گویا کہ جو عقیدہ ہے عام فہم میں عالم اسلام کا کہ مسلمانوں کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، اور یہ ایک المیہ ہے تاریخ اسلام کا کہ وہ ماں جس کے کردار کی وجہ سے اسلام مسلمانوں تک پہنچ سکا ہے، عالم اسلام اب تک اس بیوی کی محرکات رحلت یا شہادت سے ناشنا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد وعلی عالم اسلام کو ابھی تک یہ بات معلوم ہی نہیں کہ آیا اس بیوی کی خدمات کیا ہیں، قرآن کس انداز میں اس خاتون کی حمد و ثنا کو بیان کر رہا ہے، اور پروردگار عالم نے کس طرح اس بیوی کے ذریعے اپنے دین کو استقامت عطا کی۔ خطابت کا کوئی دعویٰ نہیں، صرف ان بچوں سے اور جوانوں سے خطاب یہ بھی اسی بیوی کا احسان ہے کہ یہ بیوی جو ہے اس کے لگائے ہوئے چمن میں، دیکھیے باغبان جو ہوتا ہے یا باغ کی رکھوالی کرنے والا جو ہوتا ہے یا مالی جو ہوتا ہے، وہ باغ میں سے توجہ رکھیے گا، وہ باغ میں سے پھولوں کو چن چن کر ان کا ایک گلدستہ بنا کر آپ کو پیش کر دیتا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن در اصل کمال اس باغبان کا ہوتا ہے جس نے وہ پھول لگائے ہوتے ہیں۔ مالی جو ہوتا ہے وہ تو فقط انہیں چن کر ایک بہترین گلدستہ بنا کر آپ کو دے دے گا، لیکن اصلاً کمال اس باغبان کا ہے کہ جس نے محنت کر کے اس زمین میں وہ پھول لگائے ہیں اور ان پھولوں کو پنپنے میں اپنا خون پسینہ شامل کیا ہے۔ اب پورے عالم اسلام میں پوری روئے زمین پر مختلف خطبہ علماء جواہر محمد و آل محمد و فضائل محمد و آل محمد کے پھول چن کر سامعین و مومنین کی خدمت میں پیش تو کرتے ہیں، لیکن یہ لگائے ہوئے خدیجۃ الکبریٰ کے ہیں، وہ باغبان کے جس نے اسے اپنے مال سے، خون سے، پسینے سے سینچا ہے، اور یہ سلام اللہ علیہ۔ صلوات پڑھیے بی بی کی ذات پر۔ بیٹا پانی تھوڑا سا مجھے دے۔ اللہم صلی علیہ سورہ مبارک کو خطاب کر کے کہا گیا ہے مردوں کے عنوان سے، یعنی زوجین کا تذکرہ ہے، خاوندوں کا اور ان کی ازواج کا، بیویوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ مردوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، کون؟ یعنی بیویاں۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کا لباس ہو، گویا کن کا؟ اپنی بیویوں کا۔ بیویاں شوہروں کا لباس ہیں، شوہر بیویوں کا لباس ہیں۔ اچھا عزیزان گرامی قدر، اب لباس کے حوالے سے عالم اسلام نے کیا کیا؟ لباس کے حوالے سے عالم اسلام نے حتیٰ کہ سرکار حضرت آدم علیہ السلام تک کو نہ بخشا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ میرا موبائل دو بھائی۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اب آیات زیادہ تھیں اور یاد کرنا مشکل تھا، تو قرآن سے پوچھئے کہ لباس کے توجہ رکھیے گا۔ میں آپ کے سامنے چند آیات پیش کرتا ہوں کہ قرآن لباس کس کو کہہ رہا ہے، بس میں آیات پڑھ کے اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لباس التقوی ذالک خیر لکم۔ توجہ رکھیے گا، جوانوں سے کہہ رہا ہوں توجہ رکھیے گا، لباس التقوی ذالک خیر لکم، یہ تقوی لباس ہے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس قرار دیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذَاكَهَا اللَّهُ لِبَاسُ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور اللہ تمہیں خوف اور بھوک کے لباس کے ذریعے آزمائے گا، یعنی تقوی لباس، رات لباس
खौफ लिबास, भूख लिबास। और एक और जगह इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बनी आदमा कद अंज़लना अलैकुम लिबासा युवारा सवातुकुम वर्रैशा। ए बनी आदम, हमने तुम्हारी तरफ लिबास उतारा है ताकि तुम खुद को ढांपो और सवारो। यानी देखिए, अब मैंने आपके सामने 7 किस्म के लिबास कुरान की रूह से अर्ज कर दिए। तकवा जी क्या लिबास, रात लिबास, भूख लिबास, खौफ लिबास, कपड़े लिबास, मर्द लिबास, औरत लिबास। 7 लिबास हो गए। अब 8वां लिबास सुनिएगा। एक और जगह इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यंज़ा अनहुमा। ये बड़ी लतीफ आयत है, पूरी आयत में तस्निया के सीगे इस्तेमाल किए गए हैं। यंज़ा अनहुमा लिबासुहुमा लियुरीहुमा सवातिहिमा। यानी गोया हमने, जनाब आदम के हवाले से ये आयत, कि हमने इन दोनों के लिबास उतार लिए ताकि ये एक दूसरे पर आया हो जाएं। अब आलम इस्लाम ने जुल्म ये किया कि कहा कि वो उनके लिबास उतार दिए गए ताकि सुम्मा मिन ज़ालिक वो एक दूसरे को बरहना करके देख लें, यानी बरहना देख लें। सुम्मा मिन ज़ालिक जनाब आदम और जनाब हव्वा सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन के हवाले से जिक्र किया गया। तो मैंने आपके सामने जो कुरान ने जिन चीज़ों को लिबास कहा, याद रहेगा, तकवा लिबास है, रात लिबास है, भूख लिबास है, खौफ लिबास है, मर्द लिबास है, खातून लिबास है, जो आपने पहना हुआ है लिबास है, और एक वो लिबास था जो जनाब आदम और जनाब हव्वा के हवाले से कुरान ने जिक्र किया। अब आलम इस्लाम ने लिख दिया कि वो लिबास उतार कर, तवज्जो रखिएगा, लिबास उतारा गया ताकि वो एक दूसरे को बरहना देख लें। ये शान अहदियत के खिलाफ है, ये शान तौहीद के खिलाफ है। अजीज़ान गिरामी कदर, लियाकत भाई, अगर मैं आपके घर आऊं या आप मेरे घर मेहमान आए और मैं आपको लिबास दूं और फिर वो लिबास उतार लूं कि आपकी तज़लील सुम्मा मिन ज़ालिक खुदा ना खास्ता हो, तो क्या आप हमसे ऐसी बात करते हैं? जी, आप में से कोई ऐसी बात करता है? जब हम आपसे नहीं करते, आप हमसे नहीं करते, तो खुदा से कर सकते हैं? खुदा ऐसा कर सकता है? आयत का मानी व मफहूम समझाया ही नहीं गया। आयत, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद जाने के लिए। तो क्या होगा? बड़े तो बड़े, बच्चे भी कहेंगे कि किबला ये हमारी चीज़ें छोड़ते हुए जाइए। ये नहीं पता चला कि जो मेहमान होता है वो जहाँ जब कयाम करता है, उस कयाम के दौरान वो उस जगह की अशिया को बुरुए कार ला सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन साथ ले जा नहीं सकता। यही तो किया परवरदिगार ने कि जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेहमान थे जन्नत में, तो जब जन्नत से जाने लगे, जाने क्यों लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। हमेशा जन्नत में रहना ही नहीं था उन्होंने। अगर हमेशा जन्नत में ही रहते तो फिर कुरान की आयत की मानी और मफहूम क्या होता? खुदा कह रहा है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जमीन पर खिलाफत देने वाला हूं। तो अब उन्हें भेजने के लिए भी अल्लाह ने कहा कि ये नहीं कहा कि इस दरख्त से खाना नहीं, कहा ला तकर्रब लिहाज़ शजरा था, इसके करीब भी मत जाना। और मुफस्सरीन ने लिखा कि जनाबे आदम और जनाबे हव्वा उस दरख्त के करीब नहीं गए। जनाबे आदम और जनाबे हव्वा उस दरख्त के करीब नहीं गए, उसकी जिन्स यानी उस जैसे एक दरख्त के करीब चले गए, शैतान की झूठी कसम के बहकावे में आकर। अज़ीज़ान गिरामी कदर, तो अल्लाह ने कहा अब आपको जाना पड़ेगा। अब जब आने लगे तो लिबास उतरवा लिया। जनाबे आदम को उतारा श्रीलंका के किसी इलाके में, और जनाबे हव्वा को उतारा सऊदी अरब में जद्दा में। आज भी शहर जद्दा, ये जो जद्दा है ये जनाबे हव्वा की निस्बत से जद्दा है कि जिस वक्त जमीन को तकसीम किया गया तो वो जद्दा जनाबे हव्वा के हिस्से में आया, और उसका नाम ही जद्दा कहते हैं। दादी को जद्दा नाम ही पड़ गया कि हमारी दादी का इलाका है। तो यानी मफहूम यह है कि हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबास लहुन्ना, मर्द खावन बीवी का लिबास है, बीवी खावन का लिबास है। अल्लाह ने इन्हें जन्नत से उतार कर दोनों को अलहदा किया। यानी हव्वा बीवी थी तो आदम का लिबास थी, आदम खावन थे तो हव्वा
सलवात पढ़िए। अलियन वली अलियन वली यानी अगर मैं बात को वाज़े कर सक रहा हूँ कि खुदा ने किस लिबास के हवाले से तस्करा किया, तो आदम बहैसियत खामंद जनाबे हव्वा का लिबास थे और जनाबे हव्वा बहैसियत ज़ौजा जनाबे आदम का लिबास थी। तो ये लिबास अलहदा कर लिया गया, उतार लिया गया जन्नत में से भेजने से पहले। इस लिबास को अजीज़ान ग्रामी कदर, यही तो बात है कि मेहमान जब रुकता है तो लिबास या कोई भी चीज वहां की साथ नहीं ले जा सकता। मेहमान जितना अरसा कयाम करेगा आप इजाजत दे देंगे उसे कि वो लिबास भी इस्तेमाल करे और आपका कमरा भी इस्तेमाल करे और तमाम चीजें, आजकल वाईफाई ज्यादा माने रखता है, इस्तेमाल करे। वो जब जाएगा, तवज्जो बच्चों से कह रहा हूं, जब जाएगा तो अशिया छोड़कर जाएगा। ये मेहमान था, वो मालिक हुआ करते हैं कि अगर जमीन पर भी बैठे हो तो लिबास जन्नत से मंगवा लिया करते हैं। यानी वाज़े कर सका मैं आपको, वो मेहमान थे। अब वो कोई मालिक हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं, लेकिन मंगवा जन्नत से मंगवाना दलील है कि मालिक ये है। अच्छा, और फिर लोगों ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म यहाँ तक किया कि कहा कि जनाब हव्वा सल्लल्लाहु अलैहा बड़ी अजीम बीवी हैं जनाब हव्वा। अब मेरे जहन में बात आ गई, इजाज़त देंगे मुझे? तारीख लिखती है कि जिस वक्त जनाब हव्वा ज़मीन पर उतारी गईं और ज़मीन पर उतारे जाने के बाद, ज़मीन पर उतारे जाने के बाद जब पहली मर्तबा जनाब हव्वा ने अपना जूड़ा बालों का, जिसको आप हम अपनी ज़ुबान में जूड़ा कहते हैं, यहाँ पर मैं ये वजाहत देता चलूँ, माफ़ करेंगे मुझे कह दूँ ये बात, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, माफ़ करेंगे मुझे, माफ़ करेंगे। अगर ख़वातीन सुन रही हो, नहीं तो ऑनलाइन तो सुन रही होंगी। कितने लोग सुन रहे हैं अच्छे खासे, मजलिस में नहीं आएंगे, ऑनलाइन बैठ के सुनेंगे। सलवात पढ़े एक दफ़ा फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी शरीयत में फ़िक़ही एतबार से और शरई एतबार से ख़ातून के खुले हुए बाल ये मुसीबत की अलामत है। यानी अगर ख़ातून बाल, जैसे आजकल माफ़ करते हैं, बस इशारा करके गुजर रहा हूँ, बात ख़ातून के बाल खुले हैं तो शरई इस्तिलाह में ये इस चीज़ की अलामत है कि खुदा न खास्ता बाप मर गया, बेटा मर गया, शौहर मर गया, गम की अलामत है। शरई इस्तिलाह में जो ख़ातून की, यूँ समझ लीजिए कि उसकी जीनत है बालों की, वो जूड़ा जिसको आप कहते हैं ना, बालों का बंधा हुआ होना, चूटिया नहीं, जूड़ा। अब जनाब हव्वा सल्लल्लाहु अलैहा ने जब ज़मीन पर आने के बाद पहली मर्तबा अपने जूड़े को खोला तो उस जूड़े से खुशबू जहाँ जहाँ गई, आज ये अतर आपको वो खुशबू की सूरत में महसूस हो रहे हैं। जहाँ जहाँ वो खुशबू फैली, जनाब हव्वा सल्लल्लाहु अलैहा ने जब पहली मर्तबा अपने बाल खोले तो उनके बालों में से वो जो जन्नत में बांधे थे, बनाए गए थे, जो खुशबू निकली है, दुरे हाज़िर तक उलमा लिखते हैं कि वो अतर और मुझको अंबर और ये फूलों की जो खुशबू हैं, ये उस तमाम उसकी वो हैं। अच्छा, आलम इस्लाम ने जुल्म ये किया कि जनाब हव्वा के लिए कहा कि वो जुफत जना करती थी, यानी क्या कहते हैं उसको, ट्विंस, क्या कहते हैं ट्विंस को उर्दू में? जुड़वा, माजरत चाहता हूँ, जुड़वा जना करती थी। और एक लड़का होता था, एक लड़की होती थी। एक लड़का होता नहीं, 6 माह के बाद नहीं, आलम इस्लाम ने लिखा सुबह और शाम। यानी यहीं से पता चल जाता है कि इनकी जहनीत क्या है। और का जो सुबह पैदा होने वाली लड़की है वो शाम वाले लड़के से निकाह कर सकती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये यजीदियत आज भी बाकी है। अजीज़ान गिरामी कदर, ऐसा नहीं है।
जनाब हवा सल्लल्लाहु अलैहि एक बाअज़मत बीबी हैं। अब इस वक्त मेरा मौजू नहीं है कि मैं इस पर बहस करूं कि वो क्या मामलात थे। बहरहाल जनाब हाबील अलैहिस्सलाम के शहादत का भी यही वो मुहर्रिकात में लिखा कि काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो बड़ी खूबसूरत थी और जनाब आदम ने जनाब हाबील के साथ उसका निकाह करा दिया, तो काबिल ने इसके यूँ समझिए कि बुग़्ज़ में और गुस्से में आकर और बदले की आग में जनाब हाबील अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। अच्छा, अब ये वो लिबास था कि जिसके हवाले से कुरान जिक्र कर रहा है कि हमने जन्नत से उतारने से पहले इनका लिबास इनसे हटा दिया ताकि इन्हें पता चल जाए। अब 300 बरस तक जनाब आदम भी गिरिया करते रहे और जनाब हव्वा भी गिरिया करती रही, और तारीख ने यहाँ तक लिखा कि इतने आंसू बहे जनाब आदम के कि रुखसारों में आंसुओं के बहने से यूँ समझिए वो आंसुओं की नहरें सी बन गई, यानी वो एक लकीरें सी कतारें सी बन गई थी जहाँ से आंसू बहा करते थे, और जनाब आदम अलैहिस्सलाम इस कदर गिरिया कर रहे हैं। और फिर कुरान कहता है व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अल्लमल आदमल अस्मा, हमने आदम को कोई अस्मा सिखाए और का आदम फताब अलैह अब इनके तवस्सुल से खुदा की बारगाह में अपनी तरके औला की दरगुजर की दरख्वास्त करो। यहां तक बात वाज़ेह कर सका हूं, यानी हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, ये तुम्हारा लिबास है और तुम मर्द बीवी का लिबास है और बीवी मर्द का लिबास है। अच्छा, एक और लिबास के हवाले से सुनिएगा, बड़ी अजीम बीबी जो लिबास है खलील खुदा का, जनाब सैयदा हाजरा सल्लल्लाहु अलैहा, सलवात पढ़िए बीबी की ज़ात पर। जनाब हाजरा सल्लल्लाहु अलैहा, अल्लाह ने जनाब इब्राहीम का जो मुल्क है वो शाम है, दौरे हाज़िर में जो शाम है वो जनाब इब्राहीम का मुल्क है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपनी ज़ौजा और ये बिल्कुल छोटा सा बच्चा जो है दूध पीता बच्चा, इसको ले जाकर हिजाज़ के इलाके में यानी दौरे हाज़िर के मक्का में छोड़ाओ। अब अज़ीज़ान गिरामी के अंदर वो मक्का ऐसा था कि लकोदक सहरा है, ना कोई दरख्त है, ना कोई परिंदे हैं वहाँ पर, और पानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और संगलाख किस्म के, संगलाख जानते हैं, बिल्कुल खुश्क पहाड़, यानी ऐसे पहाड़ के पहाड़ों पर भी सब्ज़ा नहीं है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जनाब हाजरा सल्लल्लाहु अलैहि और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को लाए, वहाँ छोड़ा और चल दिए। एक खातून हत्ता के कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरत पर फोकियत रखता है, यानी मर्द के मुकाबले में खातून कमतर है मुकाबले में, लेकिन अमाल में ऐसा नहीं है, अमाल सबके बराबर हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि जनाब हव्वा खातून सिनफ़े नाजुक से जनाब हाजरा सिनफ़े नाजुक से ताल्लुक़ रखने वाली खातून की एक फ़ितरत होती है कि वो घबरा जाती है, जल्दी डर जाती है, परेशान हो जाती हैं। जनाब इब्राहीम जनाब हाजरा सल्लल्लाहु अलैहि को जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ वहाँ छोड़कर रवाना हो गए लकोदक सेरा में। अब जनाब हाजरा सल्लल्लाहु अलैहि ने एक मरतबा जनाब, तवज्जो रखिएगा, जनाब हाजरा ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा या खलील परवरदिगार, ए खलील खुदा, आप जा तो रहे हैं और ये जो थोड़ा बहुत मेरे पास खाना पीना है ये ख़त्म हो जाए तो फिर मैं क्या करूं, पानी ख़त्म हो गया तो क्या करूं। तो तारीख़ लिखती है कि जनाब इब्राहीम ने इशारा करके कहा ये सफ़ा व मरवा पर देखना, ये कहा जनाब इब्राहीम ने। जनाब इब्राहीम रुखसत हो गए, जनाब हाजरा वहाँ पर मुकीम हैं, वहाँ पर क़याम कर रही हैं, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। छोटा सा बच्चा, आपके घरों में छोटे बच्चे होंगे, अपने चादर के पल्लू का साया बना रही हैं धूप से बचाने के लिए। और तारीख़ लिखती है कि 2 दिन या कुछ दिन में वो जो ज़ाहिर पानी जितना भी जनाब हवा के पास था, तवज्जो रखिए, वो पानी ख़त्म हो गया। जनाब हाजरा के पास सलामत रहिए, जो पानी था वो ख़त्म हो गया। जनाब हाजरा ने जनाब इस्माईल को ज़मीन पर लिटाया और दौड़ी सफ़ा की जानिब, देखा वहाँ पर पानी नहीं है, ख्याल आया कि कोई दरिंदा मेरे बच्चे को ना आले, तो भागती हुई वापस आई, जनाब इस्माईल को उठाया। और अब जनाब इस्माईल की तारीख़ लिखती हालत ये है कि वो प्यास की शिद्दत से परेशान हैं। एक मरतबा फिर बच्चे को रखा और मरवा की जानिब, यानी सफ़ा और मरवा की जानिब, पहले सफ़ा की तरफ पहाड़ी की तरफ गई, जिन्होंने ज़ियारत की हुई है वो जानते हैं, और फिर मरवा की तरफ भागी। वहाँ भी फिर ख्याल आया कोई दरिंदा बच्चे को ना आले, तो फिर भागती हुई वापस आई और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को उठाया। जनाब हव्वा ढूंढ रही हैं
कि पानी मिल जाए। अच्छा, जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ढूंढ रही हैं कि पानी मिल जाए, फिर गई सफ़ा की जानिब, फिर आईं, फिर गई मरवा की जानिब, फिर आईं जनाब हाजरा, फिर गई सफ़ा की जानिब, फिर आईं, फिर गई मरवा की जानिब, फिर आईं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, यहाँ बात को मैं रोक कर अर्ज़ कर रहा हूँ, 7 दफ़ा सफ़ा की जानिब गई और 7 दफ़ा मरवा की जानिब गई। ये अक्ल का तकाज़ा है क्या? अगर मैं मिसाल के तौर पर बाज़ार में आप सहरी में दूध लेने जाएं, या आप अफ्तारी से पहले चले जाएं कहीं पर अचार लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, दूध लेने के लिए चले जाएं, तवज्जो रखिएगा। यानी आप दूध लेने किसी जगह जाएं और आपको वहाँ हैदर भाई उस दुकान में दूध ना मिले और आप आधे घंटे बाद फिर जाएं, तो कहेगा भाई अभी तो कहा है दूध नहीं है जी। ऐसा ही है भाई, आप फिर जाएं। दो ही बातें हैं, या तो ऐसा करने वाले का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, या फिर वो किसी और दुकान से दूध खरीदना नहीं चाहता है। यानी बार बार एक ही मकाम पर जाना। अब जनाब हाजरा सलवातुल्लाह अलैहा से पूछिए, जनाब हाजरा सलवातुल्लाह अलैहा से पूछिए, बीबी आकाज़ादी अगर सफा और मरवा पर पानी नहीं मिल रहा कहीं और चली जाइए। कहा तुम्हें नहीं पता, कुरान कहेगा हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। मेरे वाली ने मुझे सफा और मरवा के अलावा कहीं जाने की इजाजत नहीं दी। वो और होती है जो खामदों की इजाजत के बगैर मैदानों में निकल आया करती हैं। मेरे लिबास ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं सफा और मरवा से हटकर कहीं जाऊं। अब अगर इस्माइल मरता है मर जाए, लेकिन मैं सफा पर ही जाऊंगी और मरवा पर ही जाऊंगी। तो जब वापस आई, आपके जहन में है वाकया क्या? जनाब इस्माइल के कदम आए मुबारक से क्या हुआ? पानी फूट पड़ा और बीबी ने कहा जम जम, रुक जा रुक जा। तो अल्लाह ने नाम ही जमजम रख दिया और अल्लाह ने कहा इब्राहिम अगर तू बानिए शरीयत है तो इस बीबी ने इस हुन्ना लिबासम लकुम की तफसीर को ऐसा निभाया है कि अगर कोई नबी हो, कोई इमाम हो, कोई खलीफा हो, हत्ता के सैयद रसूल ज़ादी हो, जब तक हाजरा की सुन्नत ना कर ले हज कबूल नहीं करूंगा। क्यों? लिबास है किसका? खलील खुदा का। जनाब हाजरा सलवातुल्लाह अलैहा किसका लिबास? खलील खुदा का लिबास, और निभाया इसे। अब जनाब जब जमजम का कुआं आ गया तो बहुत सारे कबाइल ने आकर खाना खुदा के गिर्द अपने मकानात बनाने शुरू कर दी, क्योंकि अरब के इलाके में पानी की किल्लत हुआ करती थी। तो तारीख़ लिखती है कि एक दिन जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने जानवरों का रेवड़ लेकर मक्का की सरजमीन से थोड़ा बाहर गए हुए थे और कोई वफ़द आया, कोई काफ़िला आया। उन्होंने पूछा कि खाना खुदा कौन सा है ताकि हम तवाफ़ कर लें। ये तवाफ़ जो है ये जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत से राइज हुआ। तो किसी मस्खरे ने किसी जोलाहे का घर बता दिया कि ये खाना खुदा। आने वाले को क्या पता, वो तवाफ़ करके चले। जब जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस लौटे शाम में, तो किसी ने बताया कि नबी खुदा आज तो बड़ा गड़बड़ हो गई, आज तो बड़ी मुसीबत हो गई। कि वो का क्या हुआ? का ये हुआ कि वो किसी ने पता नहीं किसने उन्हें बता दिया कि ये खाना खुदा नहीं, वो किसी और घर का तवाफ़ करके चले। अब जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम परेशान हैं। ज़ाहिर है हुज्जत वो होती है कि जिसे फ़िक्र होती है। मैंने जुमला तो कह दिया, जुमला तो मैं कह चुका हूँ। आलिम वो होता है जिसे फ़िक्र होती है आज़ादारी की। आज़ादारी बंद कराने के दर पे नहीं हुआ करते आलिम। नहीं समझे आप? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। उलमाए हकीकी वो हुआ करते हैं कि अगर ज़ाहिरन गोशा नशीन भी हों तो आज़ादारी के लिए सीसा पिलाई दीवार हुआ करते हैं। तो हुज्जत खुदा ने परेशान हुए। जनाब हाजरा ने देखा बच्चा परेशान है। ये क्या वाक़ई घंटा गुजर गया? जनाब हाजरा ने देखा कि इस्माइल परेशान